So in the previous class we were discussing about this question जहाँ पे समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात की गई थी, यहीं पर बात खत्म करी थी, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, सेकंड ऑफ डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थर्ड रो इज अ फंक्शन ऑफ एन एंड यू आर गोइंग टू टेक द समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू एन. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे समेशन लेना, उसको एक कोई रो या एक कॉलम डिटर्मिनेंट में दैट मस्ट बी सम फंक्शन ऑफ आर, एक रो या एक कॉलम, और वो हमने एक्सप्लेन किया था. हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, जरूर लिखेंगे. द फर्स्ट रो इज एज इट इज एक्स वाई जेड, सेकेंड रो इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड यू वांट टू टेक द सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स टू 1 टू n, summation of 2 raised to power r, summation of 2 into 3 raised to power r and summation of 3 into 4 raised to power r. The third row remains as it is, 2 into 2 raised to power n minus 1, 3 into 3 raised to power n minus 1, 4 into 4 raised to power n minus 1. R equals to 1, that means 2 raised to power 1, 2 into 3 raised to power 1, 3 into 4 raised to power 1, plus the second determinant is 2 raised to power 2, 2 into 3 square, 3 into 4 square. Third is going to be 2 cube, 2 into 3 cube into 3 into and the third element is 3 into 4 cube. और फिर सबको ऐड कर दिया, हम डायरेक्टली यहाँ पे समेशन लिख सकते हैं. So the sigma of 2 raised to power r, जो मैंने आपको हिंट दिया था, sigma of 2 raised to power r is nothing but from r equals to 1 to n, 2 plus 2 square plus 2 cube up to 2 raised to power n. It is nothing but a GP, और GP का सम अप्लाई करेंगे हम a into r, which is common ratio in number of terms is n, a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1, and it is nothing but 2 into 2 raised to power n minus 1. Just इधर भी देखिएगा. Then summation of r equals to 1 to n, 2 into 3 raised to power r. R is varying from 1 to n. 2 into 3 raised to power 1 plus 2 into 3 square and 2 into 3 raised to power n. 2 कॉमन लिया आपने, 3 plus 3 square up to 3 raised to power n, and again you are going to apply the sum of GP. GP का सम अप्लाई करोगे, a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. GP जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स n है. दिस इज 2 और ये 2 कैंसिल होगा. 3 into 3 raised to power n minus 1, ऑब्जर्व कीजिए इसको, 3 into 3 raised to power n minus 1. एंड लाइकवाइज जब आप थर्ड एलिमेंट के समेशन को भी डिस्कस करेंगे, समेशन ऑफ 3 into 4 raised to power r जरूर चेक करिएगा. सेम it is going to be 4 into 4 raised to power n minus 1, which will become the same element. So what will happen, that row number 2 and row number 3 will become identical and value of that summation will become 0. Now look for this determinant. Again that determinant is a function of r there. There is a column number 1 which is a function of r there. कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड और कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं n इंटू एन प्लस 1, n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 एंड थर्ड एलिमेंट इज n क्यूब n प्लस 1. एंड अगेन आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द सिग्मा ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n डिटर्मिनेंट डेल r करके. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए, ऑलरेडी काफ़ी पूछे गए इस टाइप के सवाल. आपने ऑब्जर्व किया, फंक्शन ऑफ r इज प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम. इट इज प्रेजेंट हियर इन एनी वन ऑफ द कॉलम विच इज कॉलम नंबर 1. And we want to take the sigma. मैंने इसीलिए in the previous class I have given you the detailed explanation कि हम क्यों डायरेक्टली सिग्मा ले सकते हैं, हम उन एलिमेंट्स का डायरेक्टली समेशन क्यों ले सकते हैं. Why we can take the sigma directly. उसको एक्सप्रेस किया था हमने कि यार r की वैल्यू 1, एक डिटर्मिनेंट प्लस r की वैल्यू 2 प्लस r की वैल्यू 3 प्लस r की वैल्यू n, और फिर उनको ऐड कर दिया गया. या डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना जब सिखाया था उसी के हेल्प से. सो सिग्मा ऑफ that will be equals to twice of, right, 6 times and the third element 4r cube
minus 2n r. It is x, y, z, n into n plus 1, n square into 2n plus 3, n cube into n plus 1. ठीक. Directly I have taken the summation here of the column number 1, which are the elements which are function of r. How to take the sigma? ये भी बता दें आपको. Twice of summation of r. Summation of r ना 2r है, तो twice of summation of r. Summation of r is nothing but sum of first n natural number. r equals to 1 से लेकर n तक है, तो sum of first n natural number which is nothing but n into n plus 1 divide by 2. सेकेंड एलिमेंट में जब समेशन की बात की जाती है तो सेकेंड एलिमेंट के लिए सिग्मा ऑफ 6r स्क्वायर माइनस 1, तो 6 टाइम्स सिग्मा ऑफ r स्क्वायर, तो सिग्मा ऑफ r स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दैट इज गिवन बाय n plus 1 to n plus 1 by 6. और द थर्ड एलिमेंट, oh sorry, 6r स्क्वायर का हो गया. व्हाट अबाउट माइनस 1? यू टू टेक द सिग्मा फॉर कंप्लीट ना, 6r स्क्वायर माइनस 1. तो समेशन ऑफ 1 जब आप लिखोगे तो समेशन ऑफ 1 को 1 मत लिख दीजिएगा गलती से. समेशन ऑफ 1 1 1 1, अगर मान लीजिए समेशन ऑफ 1 r इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू 10, तो 1 1 1 अप टू 10 टाइम्स विल बिकम 10, तो r इक्वल्स टू 1 टू n, समेशन ऑफ 1 विल बिकम n. 1 1 1 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 और n टाइम्स ऐड करोगे तो n, माइनस ऑफ n हियर. The third one, 4r cube, 4 into sigma of r cube, sum of cubes of first n natural number which is given by n plus 1 by 2 and whole square of that, n plus 1 and whole square of that, minus of 2n. Please do take care, n is a constant value which is not depending on r. Summation आप किसका ले रहे हैं? You are taking the summation for r only, so n is a constant. 2n and sigma of r, that sigma of r will again become n into n plus 1 by 2. That's how you are going to write this summation here. इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया और ये एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, इसमें एरर नहीं हो जाए कहीं कि समेशन ऑफ n भी लगा दिया आपने n plus 1 by 2. You are taking the sigma only for r equals to 1 to n. समेशन r के लिए लिया जा रहा है, r वेरी कर रहा है यहाँ पे. n is a fixed value, n एक फिक्स वैल्यू है. As far as second column is concerned, that will remain same, x, y, z. Third column is same, n plus 1, n square to n plus 3, n cube, n plus 1. ठीक है, ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 6 कैंसिल हुआ. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक यू कैन सॉल्व दैट. इस एलिमेंट को भी सॉल्व कर लीजिए, इस एलिमेंट को भी सॉल्व कर लीजिए और बताइए मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है. आई थिंक यू आर गेटिंग द कॉलम नंबर 1 एज वेल एज कॉलम नंबर 3 एज आइडेंटिकल. कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 अगर आइडेंटिकल बन जाते कर पाएंगे आप जरूर. इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं हुई. तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 विल बिकम आइडेंटिकल एंड दैट रिजल्ट इज 0 here. Now we take some simple questions based on the previous year IIT exams as well as triple E exam both. For positive numbers x, y, z, you have to find out the value of this determinant, है ना. determinant की value find out करना है. x, y, z is a positive number, ठीक है. positive number भी होना चाहिए. इनफैक्ट एक और बात है, positive number but not equals to 1, क्योंकि log के बेस में भी x, y, z है ना, that cannot be equals to 1. तो हम यहाँ पे positive numbers x, y, z which are not equals to 1. अदरवाइज ये log के जो बेस हैं वो 2000 फंक्शन लॉग के जो बेस है वो एक्स वाई जेड है, तो बेस के नॉट बी 1. क्या किया जाए इधर पे, क्या लगता है आपको? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट रो को ऑब्जर्व किया, 1 log y विद बेस x log z विद बेस x. सेकेंड रो log x विद बेस y, 1 log z विद बेस y. और थर्ड रो बेस इज z हियर, log x विद बेस z log y विद बेस z एंड 1. जो मुझे समझ में आता है, सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि log आई कैन राइट इट log x विद बेस x. फर्स्ट रो को बेस में x देखते हुए 1 को भी लिखा जा सकता है log x विद बेस x. सेकेंड रो में log x विद बेस y, log y विद बेस y एंड log z विद बेस y. देख रहे हैं, अटेम्प्ट करते हैं. द थर्ड रो log z विद बेस z. ठीक,
एट द सेम टाइम अब क्या किया जाए, रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे एडिशन करें, रो वाइज या कॉलम वाइज, क्या लगता है आपको? तो मुझे लगता है रो वाइज की जगह कॉलम वाइज में हम जाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉलम 1 के एलिमेंट्स में कॉलम 2 के एलिमेंट्स को ऐड किया एज वेल एज कॉलम 3 के एलिमेंट्स को ऐड किया। उससे क्या होने वाला है, उससे ये होगा, और कुछ भी प्लान कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है तो मेरे दिमाग में आया मैं उसको उस ढंग से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसको जब तीनों को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, log y x विद बेस x प्लस log y विद बेस x प्लस log z विद बेस x। सो इट विल बिकम व्हाट, जो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन की बात होती है, पहली प्रॉपर्टी log की। सो इट विल बिकम व्हाट, log x y z विद बेस x, ये बनेगा log x y z विद बेस y, और ये बनेगा log x y z विद बेस z। लेकिन कॉमन तो फिर भी नहीं निकाल सकता मैं उसको, क्योंकि तीनों के बेस तो डिफरेंट आ रहे हैं, वहां पर तीनों के बेस तो डिफरेंट आ रहे हैं। क्या किया जाए, कुछ और सोचते हो? ये प्रीवियस ईयर IIT में पूछा हुआ सवाल भाई, ये तो ठीक है, इट इज बिकमिंग log x y z विद बेस x, log x y z विद बेस y, log x y z विद बेस z, बट आई कैन नॉट टेक दैट एज कॉमन, क्योंकि तीनों के बेस तो डिफरेंट हैं, x y z। बेस सेम कर सकते हैं, बेस सेम कर तो सकते हैं, कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, करिए जरा, अटेम्प्ट कीजिए। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, that is the application of determinants in solving the simultaneous equations. बोर्ड एग्जाम्स में, CBSE एग्जाम्स में, इट इज थ्रू मैट्राइसेस। मैं आपको डिटर्मिनेंट के थ्रू भी पढ़ाऊंगा, दैट इज नोन टू बी द क्रेमर्स रूल, और फिर मैट्राइसेस के थ्रू भी पढ़ाऊंगा आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो सीधे सीधे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है थ्रू मैट्राइसेस, बट एट द सेम टाइम डिटर्मिनेंट से भी आप पढ़ोगे तो बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की जब बात की जाएगी तो सॉल्यूशंस तो जैसे डिटर्मिनेंट के थ्रू रहेंगे वैसे ही मैट्रिसेस के थ्रू भी रहेंगे, अप्रोच में कुछ वेरिएशन होगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है या आप भी ऑब्जर्व करेंगे, थ्रू डिटर्मिनेंट इट इज वेरी इजी। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट से भी सीख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको केवल मैट्रिसेस की हेल्प से ही आपको सॉल्व करना है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिटर्मिनेंट आपको दोनों पता होना चाहिए, और हम दोनों सीखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात की जाती है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इन टू अननोन्स, दो अननोन में दो इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करें थ्रू डिटर्मिनेंट्स, मतलब वो होता है क्रेमर्स रूल कहा जाता है। So one of the equation is a1x plus b1y, let's say is equals to c1 and a2x। बहुत सिंपल बात है, उसको ट्रू डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे हम। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सॉल्यूशंस मतलब वी आर सॉल्विंग इट फॉर x एंड y, है ना। इनफैक्ट ये a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, c1 c2 दोनों ही जीरो नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस सिस्टम इसलिए कहा गया, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये दो अननोन्स में बात करेंगे एक्स और वाई के टर्म्स में, देन विल बी डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ थ्री अननोन्स एक्स वाई जेड के टर्म्स में, एंड द सेम इज फॉर देन मैट्रिसेस आफ्टर डिस्कसिंग द इनवर्स इन रिलेटेड कंसेप्ट्स। नॉन होमोजेनियस सिस्टम इसलिए कहा गया कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, c1 is some constant value, x raised to power 1 y raised to power 1, degree is 1 there but it's a constant of degree 0, a2x plus b2y degree 1 and it is 0, so c1 c2 is present there, so it is not going to be a homogeneous। homogeneous का मतलब होता है डिग्री सेम हो, बट ये डिग्री 1 and it is constant of degree 0, right? so it is a, अगर ये c1 c2 दोनों जीरो हो जाएंगे that will become a homogeneous system of equation, वो homogeneous system of equation होगा। अभी हम ये देख रहे हैं c1 c2 दोनों ही जीरो नहीं है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, दोनों में से एक भी जीरो होगा
तो चलेगा, वो नॉन होमोजीनियस ही रहेगा, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। कौन दोनों? C1 एज वेल एज C2। इन दैट केस इट विल बिकम अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब अगर ये दो इक्वेशन देते हैं, आप कहेंगे सर इसमें क्या रखा है, हम तो बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, कुछ खास बात नहीं कि जो सॉल्व करने का तरीका होता है और उसी सॉल्व करने के तरीके को डिटर्मिनेंट्स के थ्रू लिख दिया गया, बस इतनी सी बात है। देखो कैसे, आप जब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप जब सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको इफ यू वांट टू फाइंड आउट एक्स आपको फाइंड आउट करना है, बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, इट इज गोइंग टू बी a1 b2 x प्लस b1 b2 y इक्वल्स टू b2 c1। इसे b2 से मल्टीप्लाई किया, इसे b1 से मल्टीप्लाई किया। अरे बोले सर ये तो 7th में पढ़ के आए थे, तो सही बात है। when you subtract it you are going to get the value of x and that x is nothing but a1 b2 माइनस, जब एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करते हो राइट, यानी यहां से आपको x मिल जाता है। ये जो x मिला है b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 दैट इज नोन टू बी, इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, कैसे लिखा जा सकता है देखिएगा, b1 b2 c1 c2 b2 c1, ठीक है, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 a1 a2 it is a1 a2 b1 b2 that is a1 b2 minus a2 b1। what about the numerator? numerator की अगर बात करेंगे तो first it is coming as b2 c1, so it will become in place of x, okay it is going to be like this। जब मैं x लिख रहा हूँ इसे देखिएगा माइनस की एरर क्यों आ रही है इसमें, ये एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करते हैं, ठीक, वैसे ही कोई खास बात नहीं, बोले सर ये तो बहुत आसानी से बात जानते हैं हम। देखिएगा डेल एक्स डेल वाई डिटर्मिनेंट वाई और डेल, ये तीन डिटर्मिनेंट्स की बात होगी यहाँ पे। डिटर्मिनेंट जो होगा दैट इज a1 a2 b1 b2, डेल एक्स के केस में इन प्लेस ऑफ a1 a2 c1 c2 वुड बी देयर, देन b1 b2 डेल वाई, बहुत आसानी समझ में आएगा, a1 a2 as it is and in place of b1 b2 it is c1 c2, so it is here it is what, it is c1 c2 here, चेक कर लीजिएगा, and then b1 b2। अब एक बात देखिएगा, ये लिखने में तो कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया, एलिमिनेशन मेथड आप बहुत कंफर्टेबल हैं इसमें, तो कुछ खास बात नहीं, और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसी बात को जो आपके सामने उसको मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। डिटर्मिनेंट लाइकवाइज यू कैन सॉल्व फॉर वाई, वाई सॉल्व करना है तो एक्स एलिमिनेट कर दोगे, समझाना नहीं पड़ेगा, और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। ये जो डिटर्मिनेंट लिखा गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये c1 c2 b1 b2 दैट इज नथिंग बट डेल एक्स डिटर्मिनेंट x, और ये a1 a2 b1 b2 दैट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज थ्रू डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं बात करूंगा, आपको ये नहीं बताने की जरूरत है, तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे लिख रहा हूं मैं, दैट x इज व्हाट, डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट, और लाइकवाइज y की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट। ये तीन बातें हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन से मतलब है x और y की वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो वैल्यू ऑफ x इज डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज a1 a2 b1 b2 एंड y, वैल्यू ऑफ y इज डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा जब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसके केसेस अलग अलग, तो फर्स्ट केस, इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत ध्यान से सुनने समझने की जरूरत, क्योंकि डिटर्मिनेंट के थ्रू भी देखेंगे आप और देन फर्दर फिर मैथमेटिक्स मैट्रिसेस के थ्रू भी आप देखने वाले हैं इसमें। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, डिटर्मिनेंट मींस व्हाट, डिटर्मिनेंट मींस a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2, इफ दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होती है, इन दैट केस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, देखो अगर ये डिवीजन में है और ये अगर 0 के बराबर नहीं है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ
unique solution there. यूनिक सॉल्यूशन से मतलब हुआ x की एक वैल्यू आपको मिलेगी और y की एक वैल्यू मिलेगी। भाई डिवीजन में मान लीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 आई है, मान लीजिए, तो डेल x डेल y चाहे जो भी हो, मान लीजिए ये 1 है ये 2 है, तो वो 1/5 2/5 विल बी गेटिंग अ यूनिक वैल्यू देयर। बोले सर दोनों जीरो हो गए, तो ठीक है 0/5 0/5 दैट विल बी जीरो, बट यू आर गोइंग टू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू आपको मिलने वाली है। कब? when the determinant is not equals to 0. What do you mean by that determinant? That determinant is a1 a2 b1 b2, and that was the only reason मैंने इस ढंग से आपको एलिमिनेशन करके बताया कि देखो ये जो एलिमिनेशन मेथड से आया ना, इसी बात को डिटरमिनेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। और हो सकता है कई जब दो अननोन में सॉल्व कर रहे हैं तो बोले सर एलिमिनेशन से करेंगे ना, हम क्या डिटरमिनेंट के चक्कर में पड़ेंगे, लेकिन जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगी तो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस ज्यादा इजी होंगे बनिस्बत के एलिमिनेशन के। तो ठीक है ना, इनफैक्ट बेसिकली इनका यूज भी मैथमेटिक्स में एप्लीकेशंस काफी स्ट्रांग है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के। So the first case, which is if determinant is not equals to 0, then it's going to be a unique solution then. Then the second one, if determinant is equals to 0, अगर determinant की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर determinant की वैल्यू 0 हो जाती है, that means a1 a2 b1 b2 that determinant is coming as 0। अगर ये determinant 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो that determinant x divided by the determinant y divided by the determinant, डिवीजन में 0 आ रहा है। यहां पर दो केसेस बनते हैं। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो सिंपल सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ये केसेस तो मैट्रिसेस में भी सेम रहेंगे। इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स डेल वाई ये भी 0 के बराबर है, मतलब सारी 0 हो गए, डिटरमिनेंट इज 0, डेल एक्स 0, डेल वाई 0, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ infinitely many solutions. Infinitely many solutions से मतलब हुआ you are going to get infinite number of values of x and y for that particular set of equations. उस केस में infinitely many solutions की बात पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। And the third one, क्योंकि ये दो unknown के terms में बात करें, then we'll be talking in terms of three unknowns. And the third one, that third one is if determinant is equals to 0, क्योंकि determinant not equals to 0, that's a unique solution. Determinant की वैल्यू 0 है and at least one of two del x and del y is non-zero. डिटरमिनेंट तो 0 है, लेकिन डेल एक्स डेल वाई दोनों में से कम एक नॉन जीरो है, दोनों भी नॉन जीरो हो या एक कम से कम नॉन जीरो हो। इन दैट केस वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा, दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गोइंग टू गिव यू नो सॉल्यूशन। उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। इनफैक्ट दीज आर द थ्री केसेस when we are solving for the non-homogeneous system of equation. When we talk about the non-homogeneous system of equation, that means these two constants and both the constants are not equal to 0. दोनों में से एक constant 0 हो सकता है, but both the constants C1 as well as C2 are not equal to 0. ठीक है ना। और उस केस में how to solve करना है, that means value of x, that is determinant of x divided by the determinant, and value of y is determinant of y divided by the determinant. And three cases are there. One is for the unique solution. If value of the determinant is coming non-zero, सीधे सीधे आप कमेंट करेंगे that's a case of unique solution. Unique solution that means x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, unique. But if determinant is coming as zero, उस केस में दो केस बन जाते हैं। determinant की वैल्यू जीरो हो जाती है, that means if I am talking about this a1 a2 b1 b2, that determinant is coming as zero. अगर वो determinant जीरो के बराबर होगा, एट द सेम टाइम डेल एक्स डेल वाई दोनों भी जीरो हो गए, तो वो कंडीशन बनेगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरी बात, डिटर्मिनेंट जीरो है बट डेल एक्स डेल वाई या डिटर्मिनेंट एक्स डिटर्मिनेंट वाई को मैं डेल एक्स डेल वाई बोल रहा हूं मैं, तो डिटर्मिनेंट एक्स डिटर्मिनेंट वाई दोनों में से एक भी अगर नॉन जीरो है या दोनों नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू,
is non-zero. I am going to say here that it is going to be a case of no solution. उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. These are the three cases there. और एक और बात समझ लें आप, यहाँ पे एक और जो टर्म्स होती है वो समझ में आना चाहिए. When we say यूनिक सोल्यूशन एज वेल एज, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. कंसिस्टेंट ये टर्म्स हैं और इनकंसिस्टेंट तो ये ध्यान रखिएगा. इन केस ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन एज वेल एज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. In case of consistent system of equation, unique solution as well as infinitely many solutions both are coming there. Solution exist करे वो चाहे एक हो या infinite number. और in case of inconsistent system, inconsistent है मतलब that's a case of no solution. कोई solution exist नहीं कर रहा है. In that case, that system of equation is known to be the inconsistent. दोस्तों ये इसलिए important है, ये जो terms आ रही हैं, those terms are going to remain same in case of matrices also. Those terms are going to remain same. ये मैंने दो अननोन के टर्म्स में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया आपको. नाउ आई विल बी टेकिंग द केस ऑफ थ्री अननोन्स. लेकिन ये टर्म्स तो सब सेम ही रहेंगी. ये सॉल्यूशंस की जो बातें हैं वो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, ये तो एज इट इज ही रहने वाली हैं. ठीक है ना. अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखते हैं. बस बिफोर डिस्कसिंग द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू अननोन्स, वी डिस्कस द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कि क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है यूनिक सॉल्यूशन का, क्या मतलब है इनफाइनाइटली मेनी का और क्या मतलब है नो सॉल्यूशन का. वी डिस्कस अबाउट दैट. But before of that, just note down this. Now look for the geometrical meaning of this system of equation and solution of the system of equation. उसको देखिए जरा. देखो, if there is a equation 2x plus 3y equals to 5. अच्छा, what about this a1x plus b1y equals to c1? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो एक इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन है, रिप्रेजेंट क्या करती है ये? तो आप बहुत आसानी से समझेंगे. इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. टू डायमेंशन ज्योमेट्री में जब आप देखते हैं तो a1x plus b1y plus c1 equals to 0 इज नथिंग बट द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइंस की जनरल इक्वेशन है ये. बस उसी के थ्रू हम इसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे. सो 2x plus 3y equals to 5 and 3x minus y equals to 1. ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं. यस, दीज आर द टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकॉज दोस कांस्टेंट्स आर 5 and 1 हियर. और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. और इसके सॉल्यूशंस को अगर मैं डिस्कस करता हूं तो इफ आई चेक दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज कमिंग एज 2 3 3 minus 1 a1 a2 b1 b2. that is nothing but -2 and -9 -11. it is not coming as equals to 0. डिटर्मिनेंट की वैल्यू -11 आ रही विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. Even if I calculate del x, determinant x कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? x के जो कोएफिशिएंट्स की जगह इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 3 वी आर गोइंग टू राइट द कांस्टेंट्स व्हिच आर 5 1 5 1 and this 3 minus 1 as it is. It will become -5 -3 minus of 8. ठीक. Then determinant y 2 3 and in place of 3 minus 1 I am going to write here 5 1. It will become 2 minus 15 minus 13. right. और वैल्यू ऑफ x अगर पूछा जाएगा तो डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट -8 बाय -11 दैट विल बी 8 बाय 11. और वैल्यू ऑफ y पूछा जाएगा तो -13 बाय -11 दैट इन 13 बाय 11. इट इज नथिंग बट द यूनिक सोल्यूशन इज देयर. इतनी बात तो समझ में आती है. x और y की वैल्यूज. यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सिंपल सी बात है. ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है देयर आर टू लाइंस एंड दोस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. एंड ये जो x और y की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस. बस इतनी सी बात है. जो आप यूनिक सोल्यूशन से मतलब क्या हुआ? यू आर गेटिंग ए यूनिक सोल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस. ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट इज नथिंग बट 8 by 11 and 13 by 11 और वो यूनिक सोल्यूशन है.
unique solution represents the two lines are intersecting lines in case of two unknowns there. Three unknowns में it will become a plane in 3-dimensional geometry. But two unknowns में जब हम discuss कर रहे हैं that's a straight line. और unique solution के लिए it's a intersecting lines. वो intersecting lines होंगी. ठीक? Then clear है? Unique solution represents intersecting lines in case of two unknowns. System of equation में कुछ change करते हैं देखिएगा. Let's take a different system of equation. ये एक example दिया मैंने आपको. ये दूसरा example देखिए. 2x plus 3y equals to 5 and 4x plus 6y equals to 11. Again, set of equation is given which is clearly a non-homogeneous system of equation is there. और non-homogeneous system of equation है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा if I calculate the determinant, value of the determinant अगर मैं लिखता हूँ 2 into 6 12 minus 4 into 3 12 डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? a1 a2 b1 b2 determinant x determinant y. अच्छा, so value of determinant is coming as 0. So value of determinant is coming as 0. Fine. Del x लिख देते हैं. अभी आप बहुत कंफर्टेबल से लग नहीं रहे, तो इन प्लेस ऑफ 2 4 5 11 3 6 30 minus 33 minus 3. दोनों में से एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है. डिटर्मिनेंट x डिटर्मिनेंट y दोनों में से एक भी अगर नॉन जीरो आ जाता है, इन दैट केस इट विल बिकम अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन. राइट? समझाने के लिए मैं जरूर लिख दूंगा. (22 minus 22) क्लियरली ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन. और ये नो सॉल्यूशन से मतलब क्या हुआ? ये नो सॉल्यूशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका है और शायद आप ऑब्जर्व कर चुके हैं. दीज टू लाइंस आर नथिंग बट पैरेलल लाइंस. ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस हैं? दोज आर द पैरेलल लाइंस हैविंग द सेम स्लोप्स. तो अगर सेम स्लोप्स हैं, दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं, so there is no question of intersection of the two. अगर पैरेलल लाइन से तो इंटरसेक्शन का सवाल ही नहीं उठता, और नहीं उठता इसका मतलब इट्स क्लियरली गोइंग टू बी ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन. आ रहा है क्या समझ में? बोले सर पैरेलल लाइन कैसे दिख रही है आपको? पैरेलल लाइन तो अब 2x plus 3y equals to 5. If you take 2 common here, so it will become 2x plus 3y and it will become 2x plus 3y equals to 11 by 2. कांस्टेंट वेरी कर रहे हैं, बाकी इतना बनना चाहिए अपने से. These two the parallel lines, और पैरेलल लाइंस है तो क्लियरली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक? लेट्स टेक अ थर्ड एग्जांपल. इफ इट इज x plus y equals to 2 and it is 4x plus 4y equals to 8. थर्ड सेट ऑफ एग्जांपल की हम बात कर लें. ध्यान से देखिएगा. इफ आई कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, the value of determinant 1 into 4, that will be 4 minus 4 0. determinant x को अगर मैं चेक करूंगा तो 2 8 1 4 which is 0. determinant y which is 2 8 1 4 0. what you are getting? all three 0. determinant is 0, del x 0, del y 0. definitely it is becoming a case of infinitely many solutions. और infinitely many solutions की अगर बात की जाती है, in case of infinitely many solutions, ये क्या ये भी दो लाइंस हैं, तो तय बात है, लेकिन ये दो लाइंस हैं. earlier those two are the parallel lines, but if you just observe here, आपको भी इतना दिख रहा है कि if you take 4 common, you are getting the same line. 4 कॉमन लेने पर it is becoming x plus y equals to 2. that means ये जो दो लाइंस हैं, in the first case, सुन लीजिएगा, in the first case it is intersecting lines. ये intersecting lines थी. here these two are parallel lines.
and in the third case these two are coincident lines. ये कैसी स्ट्रेट लाइंस है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोइंसिडेंट लाइंस. ये कोइंसिडेंट लाइंस सेम लाइन है ना, तो एक लाइन के ऊपर कितने, ये एक सिंगल लाइन है, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होंगे, तो देयर आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर व्हिच आर लाइंग ऑन दैट लाइन. एक लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. हाउ टू राइट दोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सेम ही इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. तो सीधी सी बात है, y की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट सेट ऑफ रियल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x की डिफरेंट सेट ऑफ रियल वैल्यूज आएगी, है ना. इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर. लेट्स टेक y इक्वल्स टू k. अगर मैं y को k लेता हूं तो x विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस k, वेयर k इज नथिंग बट अ रियल वैल्यू. समझाने के लिए लिख दिया कि y की डिफरेंट, y की वैल्यू 1 तो x की कुछ अलग वैल्यू है, y की वैल्यू 2 तो कुछ अलग वैल्यू, y की वैल्यू 1.5 तो कुछ अलग वैल्यू है. तो y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज और y की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x विल टेक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज. So that is representing the infinite number of solutions there. तो टू डायमेंशन ज्योमेट्री में जब मुझे समझाना होता है तो that is through straight lines. और straight lines के through, तो one of the two is intersecting lines, the second one is a parallel line and third one is of a coincident line. ठीक है. अभी जब मैं तीन अननोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा, a1x plus b1y plus c1z equals to d1, in that case that is not going to represent straight line. वो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में प्लेन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री आप पढ़ने वाले क्लास 12th में. फिलहाल इसको नोट करें. Now we'll be looking for the homogeneous system of equation. In case of homogeneous system of equation, जो कि दो अननोन्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, both the constants c1 as well as c2 becomes 0. अगर दोनों ही कांस्टेंट 0 हो जाते हैं, इट विल बिकम अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. लेकिन ये ध्यान रखिएगा, केवल एक कांस्टेंट अगर 0 होता है, दूसरा कांस्टेंट नॉन 0 है, तो वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही है. सो a1x plus b1y equals to 0 and a2x plus b2y equals to 0, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और यहाँ पे हम जब सॉल्यूशंस की बात करें, फर्स्ट वन, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विच इज a1 a2 सॉल्व करना है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड a1 a2 b1 b2. व्हाट अबाउट द डिटर्मिनेंट x? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी नीड टू राइट दैट, क्योंकि इन प्लेस ऑफ a1 a2 दैट विल बी 0 0 0 0 b1 b2 0. और likewise determinant y is also going to be equals to a1 a2 0 0. अभी जस्ट लिखा ही था ना आपने, तो वहाँ c1 c2 को 0 0 से रिप्लेस कीजिए, विल बी गेटिंग डिटर्मिनेंट x डिटर्मिनेंट y बोथ इज 0. तो एक बात तो कंफर्म है, इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सारा खेल डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर, क्योंकि डिटर्मिनेंट x और डिटर्मिनेंट y तो कंपलसरी 0 है, तय बात है, बिकॉज बोथ द कांस्टेंट्स आर 0, c1 c2 आर 0, तो डिटर्मिनेंट x और डिटर्मिनेंट y दोनों 0 हैं. So when we talk about the value of x, already we have discussed that is determinant x divided by determinant, and value of y that is determinant y divided by the determinant. इसको del x को मैं determinant x भी कह रहा हूँ, del y को determinant y भी कह रहा हूँ, क्लैरिटी रहे. तो न्यूमरेटर इज 0 देयर, डिटर्मिनेंट x डिटर्मिनेंट y बोथ आर 0. तो दो बातें हैं यहाँ पे, दो ही बातें हो सकती हैं. कौन सी दो बातें? अबाउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, 0 हो या नॉन 0 है. द फर्स्ट केस, इफ वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी 0, मान लीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तो इट विल बी 0 by 5 0 by 5, दैट विल बी 0 0. वैल्यू ऑफ x 0 होगी, वैल्यू ऑफ y 0 होगी, तय बात है. यूनिक सॉल्यूशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट यूनिक सॉल्यूशन, इसे ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है.
ये जो टर्म्स हैं, दोस टर्म्स आर देयर फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो टर्म्स बता रहा हूं मैं आपको, ये होमोजीनियस सिस्टम, यूनिक सोल्यूशन को यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के ऊपर ही है, दीज टू आर ऑलरेडी जीरो, वो तो फिक्स है जीरो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। और दूसरी बात, इफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो बिकमिंग इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाता है, इन दैट केस 0 by 0 का फॉर्म हो रहा है वो, that will be a case of infinitely many solutions. Again, that will be the case of infinitely many solutions, and infinitely many solutions के केस में यहाँ पर infinitely many को जो है, instead of writing infinitely many, उसे यहाँ पर लिखा जाता है, जो टर्म यहाँ पे आएगी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये जो दोनों टर्म्स है, ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल, दीज टू टर्म्स आर देयर फॉर homogeneous system of equation always, whether it is a case of determinants or whether it is a case of matrices। यहाँ पे दो ही बातें हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। और तीसरी बात, सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, या तो वो जीरो जीरो है या फिर वो इनफाइनाइटली मेनी है, तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। कंसिस्टेंट इज, इट इज ऑल, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। समझ रहे हो क्या? सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, ठीक। अभी a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, अर्लियर वी हैव डिस्कस, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कांस्टेंट जीरो हो जाता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, इन दैट केस कांस्टेंट की वैल्यू अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जीरो होती है, तो दैट्स द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कुछ बड़ी बात तो नहीं कही, हेवी कंसेप्ट टाइप का तो नहीं लगा आपको कि इफ कांस्टेंट इज जीरो, y इक्वल टू mx प्लस c, so if c is becoming 0, it will become y equals to mx. Line is passing through the origin. दो बातें हैं, इन दोनों बातों को समझ लीजिएगा। तो दो लाइन से दो केसेस होंगे, like if I write 2x plus 3y equals to 0 as well as x minus y equals to 0, मैं प्रॉपर प्लॉट नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली स्लोप्स वगैरह लेके नहीं प्लॉट कर रहा हूं, केवल इतनी सी बात बता रहा हूं आपको, दैट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो दोनों ओरिजिन से पास कर रही, तो एक सॉल्यूशन तो 0,0 होगा ही होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाएगा उसको। दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रही, तो 0,0 इज गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। और अगर मान लीजिए ऐसा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, आप देख के समझ जाएंगे। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव आएगी स्लोप, ठीक है, जनरल केवल प्लॉट कर रहा हूं मैं उसको। कोइंसिडेंट लाइंस आर देयर एंड बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं है, क्लियर कर दूं मैं, केवल समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन नहीं है, लेकिन दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करेगी, ये तो तय बात है। तो 0,0 इज ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ दैट विच इज नोन टू बी द ट्रिवियल सॉल्यूशन देयर। और इस केस में बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, तो infinitely many solutions are there, but these two terms are always there for homogeneous system of equation. Again we discuss about the non homogeneous system of equation, और आप बहुत आसानी से अब समझ पाएंगे। The non-homogeneous system of equation, but now in terms of three unknowns x, y, z. Earlier we have discussed in terms of two unknowns, a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. These are the three equations there. ये तीन equations हैं, x, y, z, three unknowns there, and d1, d2, d3 those are present here. All three are not equals to 0. तीनों अगर 0 हो जाएंगे तो it will become a homogeneous system of equation. लेकिन now it is not going to represent a straight line in two dimensional geometry. Now it is in terms of three unknowns, x, y, z के terms में it is going to represent a plane. वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लेन, जिस सरफेस पे आप बैठे हो दैट्स अ प्लेन, है ना। तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में देयर आर थ्री प्लेन्स एक्चुअली,
एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन आप डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, हम बात करेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इज देयर इन क्लास 12th. तो दीज 3 प्लेन्स आर देयर. नाउ ये लाइंस नहीं है, ये प्लेन्स हैं. ये 2 प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है, वो एक अलग बात है, पढ़ेंगे आप. तो यहां पर भी जब मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो अगेन डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट इज, ध्यान से देखिएगा, a1 a2 a3, b1 b2 b3 and c1 c2 c3. a1 a2 a3, b1 b2 b2, b1 b2 b3, c1 c2 c3. In place of a1 a2 a3, d1 d2 d3 is there. फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, a1 a2 a3 इंस्टेड ऑफ दैट d1 d2 d3. बट ये ध्यान रखिएगा ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर देयर ऑन द राइट हैंड साइड, तो आप उसमें प्लस माइनस की एरर नहीं हो. b1 b2 b3 एंड देन c1 c2 c3. a1 a2 a3 as it is, first column as it is, instead of b1 b2 b3, d1 d2 d3 and c1 c2 c3. ठीक, पहले 2 अननोन के टर्म्स में डिस्कस किया था, आसानी से समझ में आती, तो ये बात तब 3 के लिए हमने एक्सटेंड करी. तो वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ y इज डिटर्मिनेंट y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और वैल्यू ऑफ z डिटर्मिनेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट. ठीक, ये एक्स वाई जेड ना सॉल्यूशंस को डिस्कस करें, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड ओनली. पहले देख लीजिए, एक्स वाई जेड को ही डिस्कस कर रहे हैं. एंड अगेन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में द फर्स्ट वन, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. और इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन सीधी सी बात है, यूनिक सॉल्यूशन डिसाइड करना है तो इतना सब कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इटसेल्फ, बस इतना से काम हो जाएगा. डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स, डिटर्मिनेंट वाई, डिटर्मिनेंट जेड, ठीक है ना, वॉट एवर मे बी द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स, डिटर्मिनेंट वाई, डिटर्मिनेंट जेड, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, दैट्स द कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन. मतलब एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यूज आएंगी यहाँ पर. नॉट फीलिंग वेल? The second case, determinant is equals to 0. If determinant is equals to 0, determinant की वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि determinant नॉन जीरो है तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है. वॉट एवर मे बी द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स, डिटर्मिनेंट वाई, डिटर्मिनेंट जेड, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 एंड if all 3 is equals to 0, determinant x, determinant y, determinant z, all 3 are equals to 0, मतलब चारों ही 0 हो जाते हैं. अगर determinant is 0 as well as determinant x, determinant y, determinant z is equals to 0, ये सभी कुछ 0 हो जाते हैं, that will be a case of infinitely many solutions. That will be a case of infinitely many solutions. If determinant is equals to 0, but at least one of 3
इज नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो जीरो के बराबर है, लेकिन डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z, तीनों में से कम एक नॉन जीरो है। एक नॉन जीरो या दो नॉन जीरो या तीनों नॉन जीरो है, दैट विल बी अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। वो नो सॉल्यूशन का केस होगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दीज थ्री। लेकिन हाँ, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगा इस बार, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी, जो अर्लियर द एक्सप्लेनेशन वाज थ्रू स्ट्रेट लाइंस, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी थ्रू प्लेन्स। वो प्लेन्स के थ्रू होगा। क्या वो प्लेन्स इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन की बात होती है। पैरेलल प्लेन्स होंगे तो पैरेलल प्लेन्स के केस में दैट विल बी अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। पैरेलल प्लेन्स से तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर कोइंसिडेंट प्लेन्स हैं, सेम प्लेन्स हो जाते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। इट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू प्लेन्स। Inconsistent, inconsistent, as we have discussed, these two comes in the category of consistent, and this is non-solution, inconsistent, ये inconsistent, right? आपको यही डिटर्मिनेंट्स फेस करना रहेंगे क्रेमर्स रूल के जो थ्रू तीन, लेकिन पता होना चाहिए सब कुछ। Now we discuss about the homogeneous system of equation. So homogeneous system of equation in terms of three unknowns. So when we say homogeneous system of equation, that means all the three constants are equals to zero there. ये तीनों constant zero हैं, d1, d2, d3 तीनों zero के बराबर होंगे। And at the same time ये कंफर्म है कि d1, d2, d3 जीरो है, मतलब एक कॉलम 0 0 0 बन रहा है। तो ये तो कंफर्म है। ये तीनों तो कंपलसरी जीरो होने वाले हैं, तो तय बात है। डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z, these three are equals to zero। केवल एक ही बात के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्ट या सॉल्यूशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। Case 1, if determinant is not equals to zero, determinant की वैल्यू equals to zero नहीं है, तो determinant की वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं है, बट these three are zero, जो न्यूमरेटर में determinant x, determinant y, determinant z है, वो तो जीरो हैं, तो x, y और z तीनों की वैल्यू जीरो होगी। Which is going to be a trivial solution then, वो एक trivial solution होगा। And if determinant is also becoming zero, determinant भी zero के बराबर बन जाता है, then again वो 0 by 0 का जो फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब ये होगा कि x y z की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली बात होगी। x y z की इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन हम उसे इनफाइनाइटली मेनी नहीं कहेंगे यहाँ पर। वी आर गोइंग टू से नॉन ट्रिवियल। नाउ द क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैविंग अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लिखे नहीं तब भी समझ में आती है बात। All the three constants are equals to zero, तीनों constant zero के बराबर है, d1, d2, d3 और non trivial solution। homogeneous system में just now we have discussed all depends on the value of determinant। if value of determinant is not equals to zero, then it is going to be having a trivial solution, which is x equals to zero, y equals to zero, z equals to zero, right? or for non trivial, determinant not equals to zero। चलिए आराम से बी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट इज 1 3 2, इट इज k 3
and 3 minus 2 minus 4. आपको क्या करना है? For non-trivial solution you are going to keep the determinant is not equals to 0, that is the determinant 1 3 2 k 3 and 3 minus 2 minus 4. The determinant is not equals to 0. सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. क्या अब आप करेंगे? बोले हाँ, जहां तक अब इसमें बोले सर रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा के करना है क्या, तो इट डिपेंड्स. आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको सॉल्व करना रहेगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. इसमें आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है इसमें. तो बताइए क्या रिजल्ट आता है इसका? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर के? अच्छा एक सेकेंड. फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड फॉर मोबाइल के बनने से थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है. चलो कोई बात नहीं. दो बातें डिस्कस करी हमने. इन केस ऑफ ट्रिवियल, जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. और इन केस ऑफ नॉन ट्रिवियल, determinant is equals to 0. in that case you are going to get infinite number of solution जो कि non trivial हम कहेंगे. तो determinant is equals to 0 and for that this determinant is equals to 0 there. बताएंगे आप रिजल्ट क्या आएगा? what value you are getting for k? डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. k is equals to 33/2. पक्का? ठीक है, अच्छी बात है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉन ट्रिवियल है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 किया एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k. नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच इज द प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन. नाउ अगेन a homogeneous system of equation is given to you. That's a previous year IIT JEE question. A homogeneous system of equation in terms of 3 unknowns are given. और आपसे कहा गया है कि it is having a non-trivial solution. It is having a non-trivial solution for theta equals to n pi or theta equals to n pi plus minus 1 raised to power n pi by 6. रिजल्ट को देख के आपको तुरंत ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ध्यान आना चाहिए कि जो रिजल्ट्स होते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रिलेटेड है. सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगेन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए. यहाँ पे नॉन ट्रिवियल से मतलब बस केवल ये है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कीजिए और उस जो रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व करके आपको जो इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बिकम अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको लिखना है. बट द ओनली पॉइंट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. is equals to 0. As far as expansion of the determinant is concerned, वो मुझे लगता है आपको बनाना चाहिए कि यार रो नंबर 1 या कॉलम नंबर 1 किसी एक को लेके आप एक्सपेंशन लिख दें तो एक्सपेंशन तो अब आपसे बनना चाहिए, है ना. आफ्टर टेकिंग सो मेनी क्लासेस ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, अब एक्सपेंशन तो मैं लिखना नहीं चाहूँगा. जस्ट गिव मी द रिजल्ट व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर द एक्सपेंशन एंड यस यू कैन गो फॉर द एक्सपेंशन डायरेक्टली. कर सकते हैं, आपको एक आध 0 बनाना है तो भी बना सकते हैं. ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, C3 प्लस C2 करोगे तो C3 प्लस C2 करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस वन विल बी 0, 3 प्लस 4 7 एंड 7 प्लस 4. देख लीजिए, चलिए एक आध कुछ ऑपरेशन करके बताता हूँ, इसमें तो आपको और क्लैरिटी आएगी. इफ आई एम अप्लाइंग हियर C3 एंड C3 प्लस C2 हियर, तो C3 प्लस C2 अगर अप्लाई करता हूँ तो कॉलम नंबर 1 एज इट इज साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा and 2, this one minus 1 4, 7 as it is, it will be 0, it will be 7, it will be 7 plus 7 14 is equals to 0. and at the same time एक और बात जो आपको समझ में आती है, 0 7 14 है तो कॉलम नंबर 3 से डेफिनेटली यू कैन टेक कॉमन व्हाट 7, डायरेक्ट लिख दें और 7 कॉमन लोगे और राइट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू 0 है तो 0/7 विल बिकम 0. तो यहाँ पे मैं 1 और 2 लिख दूँ तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए. अभी एक्सपेंशन लिख दीजिए आप, अब लिख दीजिए एक्सपेंशन इसमें, ठीक है ना. तो व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस, आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ दिस, प्लीज गिव मी द करेक्ट रिजल्ट, है ना. एनीबडी हैज सॉल्व्ड करेक्टली? यस, इट इज गोइंग टू इन टर्म्स ऑफ sin 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा. बताइएगा
कोई एक बता दीजिए जो कॉन्फिडेंट हो कि जिसमें, वैसे इसमें कॉन्फिडेंस की बात अगर नहीं है मतलब क्या पढ़ा हमने अब तक, ये भी एक दिक्कत है। बोलिए मिश्रा जी, आप बोलना चाहेंगे? करा ही नहीं आपने, क्या कर रहे थे? कबीर बोलिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी चल ही रहा है। एनीबडी, गर्ल्स? चलिए बताइए। यस 14। अच्छा, -14 क्या इक्वल्स टू 0? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंशन किया एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। इट इज 2 cos 2 थीटा प्लस sin 3 theta -2 equals to 0. Now you have to solve this. Now it's a question based on the trigonometric equation. अब ये trigonometric equation का एक सवाल हो गया। रिजल्ट को देख के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू n पाई और थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n पाई बाय 6, तो साइन के टर्म्स में होगा, बिकॉज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n पाई बाय 6। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले टॉपिक्स में आप कैलकुलस पढ़ेंगे। ट्रिगो का जहां तक कार्यक्रम है, ट्रिगो तो चाहे वो रेशियोज एंड आइडेंटिटीज हो या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो, वो पूरी क्लास 12th में सब जगह लगने वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो यू मस्ट बी वेरी मच कंफर्टेबल इन ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एज वेल एज इक्वेशंस। बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, कहीं कोई डाउट ना, कोई प्लस माइनस ना, 1/2 और 2 और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। सो इट इज 2 टाइम्स cos 2 थीटा, सबको साइन के टर्म्स में चेंज किया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, sin 3 थीटा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा and -2 equals to 0. In fact you are going to get a cubic equation in terms of sin theta. sin theta के टर्म्स में cubic equation आपको मिलेगी and that cubic equation is becoming here 4 sin cube theta, right? माइनस साइन को भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, that will become 4 sin cube theta -4 sin square theta, that will be +4 sin square theta -3 sin theta and it is 2। अच्छा कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा आई कैन टेक कॉमन आउट ऑफ दैट, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इट विल बी 4 sin स्क्वायर थीटा +4 sin थीटा -3 इक्वल्स टू 0। वी आर सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। डिटर्मिनेंट्स का रोल कितना था इसमें? डिटर्मिनेंट्स का रोल था नॉन ट्रिवियल, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 करो एंड मिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं यूजुअली, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हो या पीएनसी का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो या कुछ ऐसे मिक्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो वन ऑफ द रिजल्ट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 0, so थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू n पाई। एंड द सेकंड इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो 4 sin स्क्वायर थीटा +4 sin थीटा -3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन की बात अब मैं नहीं करना चाहूंगा। कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा? यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेंगी साइन थीटा की। sin theta is coming as -3/2 and sin theta is coming as 1/2. Now as far as sin theta equals to -3/2 is concerned, sin theta की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, so it cannot be -3/2. sin theta cannot be equals to -3/2, so this one is rejected. और sin theta equals to 1/2, so that will be equals to sin pi by 6 और sin theta equals to sin alpha हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। sin theta equals to sin alpha and theta is equals to n pi plus -1 raised to power n into pi by 6. That would be the result. तो डिटर्मिनेंट का रोल केवल इसमें डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 करने तक था, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। एंड देन डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर द रिजल्ट यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज बीन सॉल्व्ड हियर। नाउ द क्वेश्चन इज, a system of equation is given to you, x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z equals to 14 and 2x plus 5y plus lambda z equals to mu.
Now clearly it's a non homogeneous system of equation, ये non homogeneous system of equation है और यहाँ पे आपको बताना है about the value of lambda as well as mu for which this system of equation which is a non homogeneous system of equation is having unique solution or infinitely many solutions या फिर no solution. तो अगेन डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z, ये चारों डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात की जाएगी. बट बिफोर ऑफ दैट इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ यूनिक सोल्यूशन या वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर द यूनिक सोल्यूशन, तो वैल्यू ऑफ फॉर यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन की अगर मुझे बात करना है तो डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z से कोई मतलब नहीं है. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स 1 1 1 1 2 3 एंड 2 5 लैम्डा दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए एक्सपेंशन लगा के. अगर आपको उसमें टाइम कम लगता है डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं. दो जीरोस बनाना आपको बहुत आसान बात है आपके लिए. C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 करते हुए दो जीरोस यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं आप. एंड यू कैन सॉल्व दैट इजीली, है ना. केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रहा हूं मैं. इट विल बिकम 1 1 2. और आप अगर रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाते भी हैं तो थोड़ा फास्ट कर लें उसको. बहुत आपको अगर रफ वर्क कर रहे हैं तो बहुत फास्ट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है उसमें. डायरेक्ट आप उसको सॉल्व करके रख ले. 1 1 2 दिस विल बी 0 1 3 दिस विल बी 0 2 एंड लैम्डा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ डायरेक्टली आप एक्सपेंशन लगा सकते हैं. So it will become lambda minus 2 minus of 6 is not equals to 0. We can definitely say lambda must not be equals to 8. In case of unique solution के लिए lambda की वैल्यू 8 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि lambda की वैल्यू अगर 8 हो जाएगी उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो lambda must not be equals to 8. What about the value of mu? तो mu can take any real value. mu से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पर. So mu can take any real value. Lambda must not be equals to 8 and mu can take any real value. When we say about the infinitely many solution as well as no solution, एक बात तो कंफर्म है इन दोनों के लिए. ये तो यूनिक सॉल्यूशन. फॉर दीज टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्लियर कट 0 होना ही चाहिए. तो इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट कब 0 बनेगा? तो डिटर्मिनेंट 0 बनेगा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 8. ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हम. दैट मींस लैम्डा इक्वल्स टू 8. तो एक बात तो कंफर्म है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो या फिर नो सॉल्यूशंस की बात हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो कंपलसरी 0 होना चाहिए. दैट मींस वैल्यू ऑफ लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू 8. लैम्डा की वैल्यू तो 8 होना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द इनफाइनाइटली मेनी एज वेल एज नो सॉल्यूशन एंड विल बी थिंकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ म्यू. 614 mu 125 and 13 lambda. Del y, determinant y 112 614 mu 13 lambda and determinant z 112 125 614 म्यू. ठीक भाई, डिटर्मिनेंट. अब मुझे इसके बारे में बात करना होगी. यूनिक सॉल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है. इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. खत्म. फॉर नेक्स्ट टू, इफ डिटर्मिनेंट इज कमिंग एज 0, दैट मींस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 8. इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी, सुनिएगा ध्यान से, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं उस केस में डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y और डिटर्मिनेंट z, पहले सुन लीजिएगा कबीर,
अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, इन दैट केस डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y और डिटर्मिनेंट z तीनों कंपलसरी 0 होना चाहिए। और अगर नहीं बन पा रहे हैं इसका मतलब दैट विल बी ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन, कि डिटर्मिनेंट 0 है बट डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z में से एक भी अगर नॉन जीरो हो जाता है, एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो हम कहेंगे दैट्स अ कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो फिलहाल मैं बात कर लेता हूं कि लैम्डा इक्वल्स टू 8 व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z लिखा मैंने, और यहां पे आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 8, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। आई विल बी गेटिंग द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ म्यू। सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z ये तीनों 0 बन रहे हैं क्या म्यू की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अगर हाँ तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, नो सॉल्यूशन की बात हो जाएगी। तो सॉल्व करिए और इसको इक्वल्स टू 0, दूसरे को 0 और तीसरे को 0 रखिए जरा। हाँ एक सेकंड देख लेते हैं। 6, 14, व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, डिटर्मिनेंट x को आपने 0 रखा, म्यू इज कमिंग एज म्यू इज कमिंग एज 36। अब आपने कहा कि सर तीनों सॉल्व करना पड़ेंगे क्या। देखो तीनों सॉल्व इस ढंग से करना पड़ेंगे कि आप ये कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट x 0 रखने पर यू आर गेटिंग म्यू इक्वल्स टू 36। आप क्या कर सकते हैं कि म्यू की वैल्यू 36 रख दें यहां पर, और फिर वो जो नेक्स्ट टू डिटर्मिनेंट है उनको सॉल्व करके ये देख ले कि क्या वो 0 आ रहे हैं। उतना तो देखना पड़ेगा कि म्यू इक्वल्स टू, या तो हम तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके और 0 0 रख के वेरीफाई कर लें कि म्यू की सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। देयर मस्ट बी सिंगल वैल्यू ना जिसके लिए तीनों 0 हो जाएं। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तीनों को इंडिविजुअली 0 रख के चेक द वैल्यू फॉर म्यू, या फिर एक को आपने इक्वल्स टू 0 किया और म्यू की वैल्यू 36 फाइंड आउट करी, एंड यू कैन कीप म्यू इक्वल्स टू 36 इन द नेक्स्ट वन, और उसमें से आप कॉमन लेके देख सकते हैं कि कॉमन, मैं समझाऊं क्या उसको। देखो जैसे मान लीजिए इफ आई कीप म्यू इक्वल्स टू 36 इट विल बी 161, 114 3 एंड 236 8। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं यहां से 6, 14 एंड 36 कॉलम नंबर 2 से सॉल्व, तो रो कॉलम तो ठीक है, कॉलम नंबर 2 से आई कैन टेक 2 कॉमन, और कॉलम रो नंबर 3 से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, मुझे आसानी रहेगी ना इसको सॉल्व करने के लिए। तो डेल वाई जब मैं लिखूंगा कॉलम नंबर 2 से 2 कॉमन लिया और रो नंबर 3 से भी 2 कॉमन लिया, क्योंकि 18 रहेगा तब भी आ जाएगा कॉमन। ठीक है, इट विल बी 1 1 1, ठीक है, 3 7 18 और 18 का हाफ 9 और 1 3 4। ठीक है, और इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये 0 बन रहा है क्या। ये तो मुझे देखना पड़ेगा, इतना तो देखना पड़ेगा। बोले सर रो ऑपरेशन कॉलम लगा लो, या 1 1 1 बन रहा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो, इसको 0 किया आपने, ये 0 6 3 0 4 2, और चेक कर लीजिए, इतना तो कर पाएंगे अब आप लोग, है ना। एंड इट यस इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, वो 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट x को 0 रखने पर म्यू की वैल्यू 36 और म्यू की वैल्यू 36 को मैंने सेकंड में रख दिया। अगर वो नॉन जीरो आता तब क्या लिखते आप, अगर वो नॉन जीरो आता उस केस में लिखता नो सॉल्यूशन की बात हो गई है। समझ रहे हो क्या। सो आई थिंक फॉर म्यू इक्वल्स टू 36 यू आर गोइंग टू गेट इक्वल्स टू 0। कर पा रहे हैं? अरे कर लोगे यार भाई, अरे आ गया, बहुत खुशी की बात। डिटर्मिनेंट y 0 and likewise the same for the third one, determinant z also for mu equals to 36 determinant z is also coming as equals to 0. So what is happening here, सुनिएगा ध्यान से, infinitely many solutions की अगर बात की जाती है, for that lambda must be equals to 8, lambda की वैल्यू 8 के बराबर होना चाहिए ना। at the same time mu must be equals to 36, और उस केस में ये चारों डिटर्मिनेंट्स कौन से, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z सब 0 हो जाएंगे। ठीक, और वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस हो जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नो सॉल्यूशन, व्हाट इज हैपनिंग फॉर द नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में
लेमडा तो 8 होना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि लेमडा अगर नॉट इक्वल टू 8 है तो वो तो यूनिक सॉल्यूशन, बात खत्म। लेमडा मस्ट बी इक्वल टू 8 और म्यू इक्वल टू 36 के लिए डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z तीनों जीरो बन रहे हैं। नो सॉल्यूशन के लिए तीनों में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। हम कहेंगे भाई म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 36, तो म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 36, तो हमारी बात बन जाएगी, वो नो सॉल्यूशन का केस होगा, क्योंकि उस केस में डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z तीनों जीरो नहीं होंगे। दैट इज द अप्रोच टू सॉल्व फॉर द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स में होगा, वो होगा मैट्राइसेस के थ्रू।